मीडिया के होने के नाते मुझे पता है कि पत्रकार को पत्रकार कोट नहीं करता है। तो मैं आपका समय व्यर्थ करना नहीं चाहता हूँ, अपना भी समय व्यर्थ करना नहीं चाहता हूँ। 2-3 छोटे-छोटे चीज़ें मैं बोलूँगा। ज़्यादातर लोग हिंदी में बोल गए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ बातें अंग्रेजी में बोल दूँ और कुछ बातें हिंदी में रख दूँ। Am I audible? Am I audible now? Okay. So I think the previous speaker spoke on a lot of issues. I think it's important that we stay focused on the issue for which this press conference has been called. There is a time we take up a battle, one battle at a time. I do not undermine the importance of all the issues that you have raised, but I think for today, I would like to stay focused on the issue of uh, irregularities in hiring of faculty members at what we know to be in not only one of India's topmost universities, but also a university that has over the years brought you global fame. That is the Jawaharlal Nehru University. I am also a product of Jawaharlal Nehru University. And why I am here and why I feel so strongly is Jawaharlal Nehru University is not just an education institution where you go in, get out with a degree, get into the job market. Jawaharlal Nehru University builds citizens. Jawaharlal Nehru University builds future leaders. Jawaharlal Nehru University has made immense contribution to the country. And that is why it has been always in the limelight. Everybody's attention has always been on Jawaharlal Nehru University. If there could be wrongdoing with hiring of teachers at Jawaharlal Nehru University, imagine what could be happening at universities across the country. मैं आज आपके सामने हूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है. मैं एक मीडिया पर्सन के हैसियत से कुछ और बोलना चाहता हूं. इसको एक आज का स्टोरी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आप अटेंड कर रहे हैं उस तरह से मत समझिए. ये जो सवाल जो उठाए जा रहे हैं उसका गंभीरता को समझने की कोशिश करिए. इट इज नॉट अबाउट JNU, इट इज अबाउट द इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ योर कंट्री. Universities build the future of a country. More so in today's day and time, when every day we hear, the future belongs to artificial intelligence. And the only way to survive artificial intelligence is to emphasize on creative thinking. And that is where university's role takes center stage. मैं आप लोगों को आज अपने आप को एक पत्रकार के रूप में नहीं, एक अभिभावक के रूप में भी आप अपने आप को देखिए. आप किसी के माँ बाप हैं, किसी के चाचा मामा हैं, आपके भी भतीजा भतीजी, भांजी भांजा, बेटा बेटी पढ़ रहे हैं. अगर उनको जो पढ़ा रहे हैं वही सही नहीं है तो उनका भविष्य कहाँ है? आपके अपने बच्चों का भविष्य खतरे में है. तो आज ये यहाँ से आप जाकर JNU का फैकल्टी हायरिंग में हेराफेरी हुई, इसीलिए JNU का टीचर्स एसोसिएशन ने वाइस चांसलर का रिमूवल डिमांड किया. ये स्टोरी तो आज बनेगी, लेकिन स्टोरी वहां पे रुकना नहीं चाहिए. क्योंकि पिछले कुछ सालों में, बड़े सालों से हमारे विश्वविद्यालय व्यवस्था कहिए, शिक्षा व्यवस्था कहिए, उसमें लगातार गिरावट आते जा रही है. लेकिन हाल के समय में इसके रफ्तार बहुत तेज हो चुका है. आज हम जब बात कर रहे हैं, या तो यूनिवर्सिटीज में जो वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट होते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी में वो वाइस चांसलर एक विचारधारा का होता है, एक उसका पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है, तभी वो वहां पे वाइस चांसलर बन पाता है. और जहां वो उस तरह के लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते हैं, वहां अपॉइंटमेंट रोक दी जाती है.
आज हम बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु के अंदर 22 में से 16 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं है। और इसका कारण आप लोग सब जानते हैं। पिछले 4 सालों से वहां पे जो गवर्नर थे, गवर्नर रवि, जिनके साथ आप लोग सारे आप लोगों को पता है, उन्होंने वहां अपॉइंटमेंट रोक रखा था। सुप्रीम कोर्ट तक केस चली। पिछले 4 सालों में जो 16 यूनिवर्सिटीज में कोई वाइस चांसलर नहीं है। यू नो, a university without a vice chancellor is like a ship without a captain, and your children are boarded onto that ship, so you don't know where that ship is headed to. So that is what I want to appeal to you. Think about your own children and think about what you're going to do. I want to commend the work of Reporters Collective in bringing out the wrongdoing in the appointment of some of the faculty members in JNU. These are bizarre stories. If you haven't read, somebody has been appointed as associate professor where you require an 8 years of work experience, and 2 of those work years experience has been shown as a translator. A translator's work experience has been treated as a teaching experience. There is somebody else who has to have certain pay scale. She didn't have those pay scales, and then she says, I did not know about this requirement, and yet she makes it to the final shortlist. So there are evidences, and I do not want to go into that. Even if there is one wrongdoing, it merits a thorough investigation, and the culprit must be brought to book. I am actually not surprised that this is coming now. In fact, I would have wished JNUTA asked for Shanti Shree's removal long ago, because the moment she was appointed, because as my friend just now informed you, she was found guilty of misconduct and moral turpitude by a committee set up under Justice J. Patil to investigate irregularities and misappropriation in filling seats that were reserved, 15% quota that were reserved at a center in Pune between 2002 to 2007, when she was the director of the International Student Center at Pune University. It was a clear case of corruption, and she was held guilty. Such a person, when you appoint that person as a vice chancellor of university, it amounts to clear violation of the UGC rules set out in 2018, that a vice chancellor has to maintain the highest standards of moral integrity, conduct, and professional competence. She had none of those, and yet she was appointed. More so, just 1 year before her appointment in JNU, she was rejected for the vice chancellor's job at Northeastern Hill University, Shillong. So I wish at that point in time, JNUTA should have demanded and raised a campaign for her removal. देर आए दुरुस्त है, आज आप कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन ये बात सिर्फ जेएनयू तक सीमित नहीं है, हर स्टेट यूनिवर्सिटी में हो रहा है। मेरे राज्य में, उड़ीसा में 14 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं थे, और अब पिछले कुछ महीनों में 2024 में जब वहां बीजेपी सरकार आ गई, केंद्र में भी शिक्षा मंत्री जो है उड़ीसा के रहे, तो दनादन एक के बाद एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट हो गए, और सारे चुने हमारे जो शिक्षा मंत्री थे उन्हीं के ही लोगों को किया गया। हाल में मैं आपको बता दूं, रेवेंशा यूनिवर्सिटी करके एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे वाइस चांसलर एक अपॉइंट किया गया, जिनकी कोई खास एकेडमिक क्रेडेंशियल्स नहीं है। वहां मुझे बुलाया गया था हाल में बोलने के लिए, और उस लास्ट मिनट में मुझे इंफॉर्मेशन आया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से कि सर हम इसी को अनऑफिशियल फंक्शन कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों अनऑफिशियल कर रहे हो? ऑफिशियल करने से क्या होता? सर ऑफिशियल करते तो आपको थोड़ा सा ऑनरेरियम देते, आपको गाड़ी लाने के लिए गाड़ी भेज देते, अनऑफिशियल होगा तो हम नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हूँ, रेवेंशा यूनिवर्सिटी पब्लिक गुड है, मुझे कोई ऑनरेरियम नहीं चाहिए, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, मैं अपने गाड़ी में पहुंच जाऊंगा। लेकिन कारण क्या था? कारण ये था कि ये जनाब आने के बाद तुरंत
वहां का डिपार्टमेंट्स के ऑटोनॉमी खत्म कर दिए। उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि कोई डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली कोई सेमिनार, कोई टॉक ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है जब तक वाइस चांसलर का ऑफिस से अप्रूवल ना हो। तो इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे हैं। जेएनयू के मैं और एक आपको किस्सा बता दूं। मेरे एक बड़े अजीज मित्र हैं, वर्ल्ड स्टेज पे उनका नाम है। आज के डेट पर वो एक नामी फॉरेन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, जो कि दुनिया के टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में माना जाता है। वो जेएनयू में ही असिस्टेंट प्रोफेसर थे। 2009 में उनको एसोसिएट प्रोफेसर ड्यू हो गया। 5 साल तक उनको एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बनाया गया। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर यहाँ से छोड़ के चले गए। लेकिन उनका लगाव है हिंदुस्तान से, वो वापस आना चाह रहे थे। हाल में जेएनयू प्रोफेसर पोजीशन के लिए एडवर्टाइजमेंट किया। उन्होंने अपना एप्लीकेशन दी और उनका बायोडाटा बड़ा कमेंडेबल है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत नामी प्रोफेसर बन चुके हैं ग्लोबल स्टेज में। तो क्या करें? इन्होंने इंटरव्यू डेट का 4 दिन पहले उनको मेल भेजते हैं, आपके इंटरव्यू इस दिन तय हो गया, आप इंटरव्यू के लिए आइए। वो कहते हैं मैं इस देश में बैठा हूं, मैं वीजा मैं वहां आने में मुझे समय लगेगा, आप क्या और एक डेट मेरे को दे सकते हो या ऑनलाइन कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन का हमारा कोई प्रोविजन नहीं है इंटरव्यू का, और हम डेट बदल नहीं सकते। जबकि ये जो आपके जगदीश मामदेना, उनका एक बड़ा फेमस केस मुझे याद है। उन्होंने एक प्रोफेसर हायर किया, ट्रेन में जाते जाते उनको इंटरव्यू किया फोन के ऊपर इंटरव्यू करके, ये सबको पता है। और वही यूनिवर्सिटी कह रही है कि ना, हम आपका इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं कर सकते, हम आपका डेट बदल नहीं सकते। तो उन्होंने छोड़ दिया। ये आपकी देखिए ब्रेन ड्रेन हो रही है, क्योंकि ये जो जैसे संजय जी ने कहा ना, ये बनाना चाहते हैं अनफर्ड इंडिया, ताकि अंधभक्तों का इंडिया बने। लेकिन ये एक तरह का राजनीति इनका है कि क्यों ये जेएनयू इंपॉर्टेंट है। और आप सब लोगों, मैं यहाँ पे जितने लोगों को देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आप में से ज्यादा लोग सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए थे। आप भी हमारे जैसे, मैं भी एक बहुत छोटा शहर से आया था, दिल्ली। ना मेरे पास मुझे हिंदी आती थी, ना अंग्रेजी आता था उस समय। एक पैर चप्पल, 2 पैर का पतलून पहन के मैं दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा। 15 रुपए हम लोग देते थे हॉस्टल का कमरे का किराया, 108 रुपए हमारा होता था सेमेस्टर का फी। और जेएनयू का पढ़ाई क्लासरूम में नहीं होती थी। जेएनयू का क्लासरूम का कोई 4 दीवार नहीं है। जेएनयू का क्लासरूम, जेएनयू का वो 4 दीवार वाला जो डेजिग्नेटेड क्लासरूम होता है, सेमिनार हॉल होता है, कैंटीन होता है, गंगा ढाबा होता है, लाइब्रेरी होता है, और जेएनयू का चुनाव प्रोसेस भी एक बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म होता है। और वहीं से हमने हिंदी सीखा, हम अंग्रेजी बोलना सीखे, और जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत सफलता हासिल की। हमारे तरह बहुत सारे लोग दूर दुरांत से अलग अलग क्लासेस के जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में आकर आगे बढ़े। हर एक जगह में आप जेएनयू के लोग पाएंगे। इस सरकार में भी 2 जो कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे विदेश मंत्री, हमारे वित्त मंत्री, वो भी जेएनयू से हैं। उस यूनिवर्सिटी को खत्म किया जा रहा है, और उसका कारण है क्योंकि उसको एक एग्जाम्पल बनाया जा रहा है। अगर जेएनयू हम खत्म कर दिए, हम हर कोई जगह जो क्रिटिकल थिंकिंग का प्लेस होगा उसको खत्म कर सकते हैं। इसीलिए आज ये सिर्फ जेएनयू स्टोरी नहीं, ये देश की भविष्य का स्टोरी है, ये आपके बच्चों का भविष्य का स्टोरी है। उस नजरिया से इसको देखिए, और इसको आज के रिपोर्टिंग पे मत छोड़िएगा। इसके आगे सारे यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा तहकीकात करिए, लगातार इसको कवरेज दीजिए। और हमारे जो साथियां हैं, साथी लोग हैं, उनके साथ जरा संवाद रखिए। समय समय पर स्टोरीज मिलते रहेगा, बहुत सारे स्टोरीज मिलते रहेगा। थैंक यू।